हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਐਮ ਡੀਐਸਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈंने ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ योर स्ट्रैटेजी आफ्टर दिस न्यूज़ आइटम। ठीक है जी। सो देखो, पीसीएस ਦਾ एग्जाम ਸਟੇजेस ਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜਰਲੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਐਸੇ ਤੇ 4 ਜੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅ ਵੈਰੀ ਐਨਰਿਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ 2 ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਫਰਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਐਸ ਪੇਪਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੀਐਸ ਪੇਪਰ ਫਰਸਟ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ, राइट। जीएस ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ क्या मतलब है, बेसिकली पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पंजाब जीके, साइंस, इन्वायरमेंट, इस तरीके नाल 10 ਤੋਂ 15 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜੀਐਸ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਜੀਐਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੈਟ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर रीजनिंग ਦੇ क्वेश्चन, इंग्लिश ਦੇ क्वेश्चन, पंजाबी ਦੇ क्वेश्चन ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪੈਟਰਨ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ, ਇਫ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਨਰਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 200 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ 400 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟ ਆਫ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਟ ਆਫ ਮੀਨਸ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਟ ਆਫ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2021 ਦੀ ਕਟ ਆਫ 244.5 ਗਈ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਲ ਦੇ लिए, फीमेल ਦੇ लिए 237.5 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗਈ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ठीक है। सो पिछले इस तो पिछले साल भी कट ऑफ अगर आप देखिए 293 तक गई सी, ठीक है। उदो विमेन रिजर्वेशन नहीं सी, तो मेल फीमेल ਲਈ सेम कट ऑफ सी, राइट। दिस इज हाउ द प्रोसीजर यूज्ड टू बी। ਹੁਣ क्या ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ 200 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਜੀਐਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟ ਆਫ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, X% ਲੈਟਸ ਸੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ X% ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 33% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸੀਸੈਟ ਲੈਵਲ, राइट। सो मोस्ट लाइकली 33% ही रहेगा। यूपीएससी विच भी 33% है, और स्टेट एग्जामिनेशंस च भी ये 33% है। सो इस च भी मोस्ट लाइकली 33% रहेगा, बट लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू सी कि कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, राइट। सो पहला की हुंदा सी, यूजुअली ਜਿਹੜੇ मैथ बैकग्राउंड ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, they used to be very strong in English part, especially people coming from IIT, MBA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, they used to score very well in CSAT, and ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਵਿਦ ਯੂ अर्ਲੀਅਰ ਆਲਸੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज अ परसेप्शन, आई डोंट नो ਕਿੰਨਾ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਥ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਮੈਥ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਮੇਨ ਲਿਖਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹੀ ਬਾਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਚੇਂਜ दैट इज देयर, ठीक है। सो फर्स्टली तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बी केयरफुल, अगर ये क्वालीफाइंग हो गया है तो ये ना समझो कि तुसी सीसैट जेड़ा है बिल्कुल छड्ड के बैठ जाओगे, राइट। हमेशा याद रखना दैट मैनी पीपल दे फेल इवन दी क्वालीफाइंग सीसैट पेपर, यूपीएससी च या अदर स्टेट एग्जाम्स अगर तुसी देखो बहुत जगह ते क्वालीफाइंग है, बट देयर आर स्टिल लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर फेलिंग टू क्वालीफाई। 33% नंबर भी नहीं आते है, कहने का मतलब है, ठीक है। ज्यादा तो क्या आने हैं, 100 120 तक क्या कहो तुसी, 60 65 70 नंबर भी इस च नहीं लै पा रहे हो, क्योंकि कमिशनस क्या कर दिया है, जो सीसैट नू क्वालीफाइंग कर दिया है, थोड़ा ओदा डिफिकल्टी लेवल भी वधा दिंदियां ने, राइट। बिकॉज अगर ईजी पेपर होएगा 60 70 नंबर का कोई भी ले ले, दे डू नॉट वांट इन्ने वीक बच्चे भी, है ना, कुछ तो बच्चे का मतलब टेस्ट होवे कि कुछ तो एप्टीट्यूड है, तो वही चेक करने ਲਈ डिफिकल्टी लेवल भी कदी कदी वधा दिंदियां है। यूपीएससी ने तो डेफिनेटली वधाया है, लेट्स सी पीपीएससी क्या करती है, राइट। वो तो पेपर दे के ही पता चलेगा कि औखा आएगा कि सौखा, बट बी केयरफुल कि बहुत सारे बच्चे क्वालीफाइंग भी फेल करते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, राइट। सो हाउ कैन यू बी प्रिपेयर्ड, बेसिकली प्रेपरेशन ते ध्यान रखना है, यू कैन नॉट लीव सीसैट। सिर्फ ये करना है कि टाइम जिन्ना सीसैट नू तुसी डिवोट कर रहे सी, यू कैन रिड्यूस द टाइम दैट यू आर गिविंग टू सीसैट। जीएस ते ज्यादा फोकस रखो, पहला भी मैं तुहानू इन्नी बार कहा है कि 90% एटलीस्ट तुहाडी प्रिपरेशन पीसीएस दी जीएस ही है। अगर तुसी जीएस प्रिपेयर कर लिया, प्रीलिम्स मेन्स एसे इंटरव्यू एवरीथिंग यू कैन हैंडल। सीसैट तो वैसे भी बहुत छोटा पार्ट सी, बट वही जिन्ना बच्चों का वीक हुंदा उन्हां लई ये बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। नाउ ये सिरदर्दी खत्म हो गई है, तो तुसी ये टाइम टेकन यू कैन रिड्यूस। जेडे बच्चे बहुत वीक है, हर दिन घंटा घंटा सीसैट पे लाओगे इनफ है। जेडे बच्चे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जस्ट प्रैक्टिस, हफ्ते च 2 टेस्ट या हफ्ते च 1 टेस्ट दिंदे रहो, सो दैट यू डू नॉट गेट आउट ऑफ द प्रैक्टिस। फॉर्मूलाज वगैरह दिमाग चो नहीं भुलने चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं भुलने चाहिए, राइट। सो पहला जज करो कि तुहाडा सीसैट का पर्सनल लेवल क्या है। अगर बहुत वीक है हजे भी, देन कीप वर्किंग ऑन इट, जस्ट रिड्यूस द टाइम यू आर गिविंग टू सीसैट। अगर तुसी फेयरली प्लेस्ड हो, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, नवे नवे क्वेश्चंस, नवी बुक्स, नवे पेपर्स चो जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, उहदे नाल बंदा टच च रहिंदा है, ठीक है। अदरवाइज तो आपां जल्दी कर नहीं पाते उन्हां नूं, ठीक है। सो दैट यू शुड कीप डूइंग इवन आफ्टर दिस नोटिफिकेशन। बस ये है कि एक टेंशन हल्की हो गई है, यू कैन पुट मोर टाइम इनटू जीएस, जेड़ा कि तुहानू मेंस च भी काफी हेल्प करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जेडे बच्चे पूछ रहे ने कि अगर पीसीएस चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी है, विल द नोटिफिकेशन बी आउट सून, क्या इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन भी हुण आने वाली है। नाउ अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो मैं कभी भी स्पेक्यूलेट नहीं करती है जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आती है। आई नेवर टेल यू कि भाई नोटिफिकेशन आएगी। आई हैव सीन मैनी इंस्टीट्यूशंस हर 2 महीने बाद कह देंगे है कि भाई नोटिफिकेशन आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है। देखो इंटरनल सोर्सिस तो सब दे ही हुंदे है, साडी पीपीएससी दी चेयरमैन पटियाले च कमीशन है, सब दे रिश्तेदार ही उस कमीशन च बैठे ने, इवन हायर लेवल ते भी बैठे हुंदे हैं, लोअर लेवल ते भी बैठे हुंदे हैं। कॉन्टैक्ट्स, एवरीवन हैज कॉन्टैक्ट्स इन दैट कमीशन, ऐ जा कोई स्पैशल नहीं है जिहदा बहुत ही अगे पिठ लगदी होएगी। इट इज जस्ट दैट जदों कंक्रीट डिसीजन आऊगा उदों सब नूं पता चल जाना है, घंटा पहला घंटा बाद तुहानूं पता चल जाना है, ठीक है। किसी नूं भी आई नहीं है कि महीना पहला पता चलेगा, नो बडी इज गोइंग टू नो, सेम डे ते ही सारियां नूं पता चलना है,
ठीक है। सो इसीलिए डू नॉट रन आफ्टर, जिवें मैं कहनी है कि डेट या कद आएगा एग्जाम, डू नॉट रन आफ्टर दैट। इट इज पॉसिबल कि जल्द ही एग्जाम आएगा, राइट। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, राइट। अगेन व्हाट डू यू नीड टू डू, प्रिपरेशन का मतलब क्या है। पहला तो देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी भी नहीं शुरू करी, दे आर सिटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। सो पहला ही लिख के लै लो चाहे तुसी मेरे तो, अगर तुसी हजे तैयारी शुरू ही नहीं की है, यू कैनॉट क्लीयर द एग्जाम। ठीक है, अगले साल कदों भी आ जाए, जून जुलाई तक भी आ जाए, यू कैनॉट क्लीयर द एग्जाम। ए एग्जाम की प्रिपरेशन ਲਈ ईजीली टाइम लगता है, राइट। ऑलमोस्ट 1 साल ईजीली लग जाता है, क्योंकि एग्जाम के पेपर ही बहुत है, जीएस पेपर्स ही इन्ने ने, उन्होंने कवर करते करते ही 1 साल लग जाता है। सो स्टार्ट प्रिपरेशन, पहली गल तो यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द जीएस बैच। साडे जीएस बैचेस भी चलते हैं, उहदे नाल क्या है, तुहाडे बेसिक्स क्लीयर हो जाएंगे, नोट्स तुहानू मिल जाएंगे, यू कैन कीप स्टडिंग फ्रॉम दैट, की इंपॉर्टेंट है की नहीं है वो तुहानू पता चलेगा। व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर अगर तुसी जीएस बैच ज्वाइन करना चाहते हो या डेमो क्लासेस वगैरह लगाना चाहते हो। नाउ जेडे बच्चों ने ऑलरेडी बेसिक प्रिपरेशन कर ली है, दे शुड फोकस ऑन रिविजन। ईवन वो बच्चे जेडे हजे प्रिपरेशन च है, रिविजन साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए है। रिविजन वन टाइम एक्टिविटी नहीं होंगी है, रिविजन इज लाइक ऑल थ्रू योर प्रिपरेशन, रिविजन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड ऑलवेज होल्ड। ठीक है, सो रिविजन स्टार्ट कर दो, स्पेशली डेडिकेटेडली फॉर प्रीलिम्स हैवी सब्जेक्ट्स जिमें कि पॉलिटी, जोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये वाले एरियाज की थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन या रिविजन करो, क्योंकि इन्हों चो काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इकोनॉमी एंड ऑल, हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। जेडे सिर्फ मेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो तुसी थोड़ा बाद लिए भी रख सकते हो, राइट। ये भी ध्यान रखना कि सिलेबस कंप्लीट होवे, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होना है। आईआर, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, है जो बहुत सारे पार्ट्स है जेडे तुसी छड्ड के बैठे हो, एंड स्पेशली पंजाब जीके पार्ट, राइट। हुणी ਉਹਦੇ बारे भी मैं गल करांगी, ਇਹਦੇ बारे भी न्यूज़ आई है। ठीक है, सो ये सारे जेडे पेंडिंग एरियाज है उते भी फोकस करो। आई विल बी क्रिएटिंग क्लासेस फॉर दिस ऑल्सो, अगले मंथ आई विल बी स्टार्टिंग दिस बैच, उदों तुसी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, until then complete your syllabus, revise a lot and test शुरू करो, बिकॉज तुसी पढ़ते तो रहने हो, पता नहीं चलता कि पढ़ाई किस डायरेक्शन च जा रही है, पल्ले कुछ पै भी रहा है कि नहीं, हो आपां नूं सिर्फ टेस्ट तो ही पता चलूगा। टेस्ट या क्वेश्चन जब तुसी सॉल्व करते हो, यू गेट टू नो कि भाई जिहड़ा पढ़िया सी वो याद भी रह रहा है कि नहीं, राइट। अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर स्ट्रैटेजी, तुसी वर्क कर सकते हो कि भाई इंप्रूव किवें करना है, राइट। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स। नोटिफिकेशन कदे भी आ जाए तुहाडी तैयारी पक्की होनी चाहिए है, दैट इज वॉट आई विल सजेस्ट टू यू। ठीक है, मैं पर्सनली भी जब प्रिपेयर करती सी, आई हैव नेवर वेटेड फॉर द नोटिफिकेशन। मेरे दिमाग च यही रहिंदा सी कि सिलेबस सारा कंप्लीट होना चाहिए है। मेरी तो यूपीएससी ते पीसीएस दी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन सी, सो आई यूज टू फोकस कि मेरा सारा सिलेबस यूपीएससी वाला चलता रहे, पीसीएस दे जो एक्स्ट्रा पोर्शनस है वो मैं थोड़े बहुत नाल पढ़ती रहती सी, सो दैट जब भी नोटिफिकेशन आवे आई जस्ट हैव टू रिवाइज एंड राइट द पेपर। ठीक है, सो फोकस ऑन दैट ओनली। हुण नोटिफिकेशन करके आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना करो। पुट योर एनर्जी नॉट इन द डेट बट इन द प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। आस्क योर सेल्फ कि भाई अगर नोटिफिकेशन आ गई तो मैं पेपर क्लीयर कर लवांगा, राइट। अगर क्वेश्चन ये पूछते हो ना, सही डायरेक्शन च जाएगा तुहाडी प्रिपरेशन। ठीक है, सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, वही पेंडिंग सिलेबस ते पहला फोकस करो, जेडे भी सब्जेक्ट्स पेंडिंग है उन्होंने जल्दी खत्म करो। डे दे फर्स्ट हाफ च तुसी ये कर सकते हो, सैकेंड हाफ नू रखो आपदे रिविजन दे लई कि किवें सारा दा सारा सिलेबस अगले 2 तो 3 महीने च तुसी रिवाइज करो, राइट। देन इवन 4 महीने का शेड्यूल बना सकते हो तुसी 4 मंथ्स का, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आएगी भी नेक्स्ट मंथ तक, फिर वी आर लाइकली टू गेट मे बी 2 to 3 months फॉर प्रिपरेशन, ऑल्दो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट बेसिक पैटर्न ये रहता है प्रीलिम्स तक। ठीक है, सो 4 मंथ्स का शेड्यूल बनाओ, तो 4 मंथ्स की ही टेस्ट सीरीज नाल हर हफ्ते एक टेस्ट भी दिंदे रहो टू टेस्ट अगेन योर सेल्फ। ठीक है, वी ऑल्सो हैव दीज टेस्ट सीरीज, इवन 4 मंथ्स की साडी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। तुसीं ये भी कर सकते हो कि ओह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ਉਹਦਾ शेड्यूल यूज करो, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ टॉपिक्स एक हफ्ते च दिते हुए आ ਉਹਨੂੰ सारे ਨੂੰ कवर करके वीकेंड ते वो टेस्ट दो। सैक्शनल 2-2 टेस्ट होणगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हाफ करके हर सब्जेक्ट 15-15 दिन च प्रिपेयर कर सकते हो, एंड 15 days इज अ गुड इनफ टाइम फॉर रिविजन। ठीक है, सो रिविजन ਲਈ 15 दिन, पॉलिटी ਲਈ 15 दिन, हिस्ट्री ਲਈ बहुत अच्छा टाइम है, तो ਤੁਸੀਂ 4 मंथ च टाइटली प्रिपेयर कर पाओगे आपका सारा सिलेबस, एंड यू कैन बी श्योर्ड
ठीक है। एंड यू कैन डिस्कस योर परफॉर्मेंस ऑल्सो विद मी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, दैट इज वेयर आई विल हेल्प यू। ठीक है। सो इसीलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगेन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने लिए सानू मैसेज कर दो इस नंबर पे, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो siddhipunjab.com। देयर ऑल्सो यू विल गेट ऑल ऑफ दीज कोर्सेज लिस्टेड। कोई भी इशू होवे सानू इस नंबर ते कॉन्टैक्ट करो। पॉइंट सिर्फ यही है कि प्रिपरेशन नू थोड़ा अच्छे तरीके नाल फाइन ट्यून करो। ठीक है। डू नॉट बी लूज एनी लॉन्गर। ठीक है। डू नॉट कीप वेटिंग कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगी फिर तैयारी शुरू करांगे। जस्ट फोकस ऑन डेडिकेटेड प्रिपरेशन। राइट नाउ पीपीएससी चेयरमैन ने सिर्फ यही नहीं किया कि ਜਿਹੜਾ सीसैट है वो क्वालीफाइंग होएगा। एक होर न्यूज़ है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। दैट इज ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਫੋਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। राइट स्पेशल फोकस इन्होंने डेडिकेटेडली किया है। दैट मीनस इन्हों ते नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल इंक्रीज एंड मेन्स एग्जामिनेशन इन्होंने किया है। ठीक है। सो मेन्स प्रीलिम्स सारे किते वी कैन एक्सपैक्ट कि पीसीएस दे हिस्ट्री जोग्राफी कल्चर इकोनॉमी ते हुण ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे दैन यूजुअली दे आर आस्क्ड। ठीक है। सो एदी भी होर डेडिकेटेड आपां नूं तैयारी करनी पएगी। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया आई विल बी स्टार्टिंग अ कोर्स फॉर पंजाब जीके प्रीलिम्स मेन्स दोनों दी पंजाब जीके मैं उस च कवर करावांगी। अगेन तुसी ये किहड़े सोर्सेस तो प्रिपेयर कर सकते हो, जिहड़े तुसी ट्रेडिशनली यूज कर सकते ऑलरेडी यूज कर रहे हो सोर्सेस, दे माइट नॉट बी इनफ फॉर दिस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसीलिए सिद्धि पंजाब दी करंट अफेयर कंपाइलेशंस देखो, उस च पंजाब स्पेसिफिक बहुत सारे टॉपिक्स मैं डिटेल च कवर कर दी हैं। साडा कोर्स तो तुसी ज्वाइन कर ही सकते हो व्हेन वी रिलीज इट। दैन इस तो इलावा तुसी क्या करना है, आई हैव ऑलरेडी मेड इकोनॉमी सीरीज प्लेलिस्ट च जाओ, इकोनॉमी प्लेलिस्ट उस च देखो पंजाब बजट, पंजाब इकोनॉमिक सर्वे ते ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हैं। यूज दैम ऑल्सो वाइजली, वो तुहानू काफ़ी हेल्प करनगियां। राइट एंड मतलब इस तरीके नाल प्रिपेयर हुंदा रहेगा। इस तो बाद मैं सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी पंजाब दी है इस कोर्स दे विच ही कवर करावांगी। पंजाब जीके दा डेडिकेटेड कोर्स आई विल बी स्टार्टिंग। आई नो मैंने बहुत देर तो कह रही हैं, एक्चुअली रीजन यही सी कि देयर वर अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिहड़े मैं पहला कवर करना चाहती सी बिफोर पंजाब जीके, इसीलिए पंजाब जीके थोड़ा डीले चल रहा है। बट नाउ पंजाब जीके का टाइम आ गया है, पंजाब जीके का टाइम चेयरमैन ने भी लिया आता है, तो आप पंजाब जीके नू ही हुण शुरू करांगे डेडिकेटेडली। प्रीलिम्स ते मेन्स दी अलग अलग आप तैयारी करांगे। राइट सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगर तुहानू कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तुसी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कोई मीन कन्फ्यूजन है तुहाडी प्रिपरेशन रिगार्डिंग, इस नंबर ते मैनू व्हाट्सएप कर दो। आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। ठीक है जी। सो फोकस अगेन ऑन प्रेपरेशन, यही अपना एजेंडा होना चाहिए है। प्रेपरेशन फर्स्ट, नोटिफिकेशन की डेट बारे सोचना बाद च। राइट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, प्रिपेयर वेरी वेल। आई होप कि तुसी सारे एग्जाम क्लियर करो, ਉਹਦੇ ਲਈ मेहनत करना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। कमिंग ईयर जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आती, प्लीज डट के पढ़ो, 8-10 घंटे सीरियसली पढ़ो, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। और आपकी प्रिपरेशन नू मेरे नाल डिस्कस करते रहो सो दैट अगर कोई कमियां हैं उन्होंने आप ठीक कर सकीए। ठीक है जी। सो इस नंबर ते कनेक्ट करो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो। राइट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच for this video.